Hello students, welcome back to our Abba class channel. I am Lok Shukla and Jain. So today we will start um, chapter 1 of science class 9th. Okay, so what is our chapter? Matter in our surrounding. Chapter 1, matter in our surrounding. Okay. Matter in our surrounding. So first of all, um, the first question arises is that what is matter? Matter that occupies space and have mass is called matter. Um, like okay, like this paperweight. Okay, it has some mass and it occupies some space. Okay, like a liquid has some mass and it occupies space, means in which container it is kept. It occupies the space of that container. Okay, so liquid, the solid, and the gas, they all are matters. Okay, so first we will write matters. What are matters? The substance which occupy space and have mass are called matter. Okay, so what is matter? The matter is that substance which occupies space and have what? Mass. The substance which occupies space and have mass is called matter. Okay, so if we talk about in uh, according to our ancient philosophers, Indian philosophers, according to Indian philosophers, matters are matters are classified in the form of five basic elements. Okay, so according to our Indian philosophers, what the matters are classified into five basic elements. First is air, earth, fire, sky, and fifth one is water. So in Hindi, if we pronounce the name Vayu, धरती, अग्नि, आकाश, जल, तो इन फाइव ये फाइव एलिमेंट से मिलके जो चीज बनती है ना, वो हमारा मैटर हो रहा है. ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग है? इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग. ओके, एंड सेकेंड थिंग, अकॉर्डिंग टू modern scientists, if we see, according to modern scientists, matters are classified into
two properties, two properties. Modern Chinese के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वन इज chemical nature. Okay. First one is physical property and second one is chemical nature. Physical property means how it is looked physically. Okay. Like it is a solid. It looks like solid. And now this bottle contain water. So the water is in liquid state and the gas air. Okay, it is in it is also a fluid, but it flows continuously. Okay, and next one is chemical nature. So what is the chemical nature of this solid, liquid and gas? Okay, next, what is the next topic? Physical nature of matter. First one is physical nature of matter. So here is the question that फिजिकल नेचर ऑफ मैटर होता क्या है. पहला तो मैंने आपको बताया ये अपना सॉलिड नेचर है, फिजिकल लिक्विड है, गैस है और एक और थर्ड नेचर होता है जिसे हम लोग प्लाज्मा होता है. मतलब ये डिफरेंट स्टेट्स होते हैं हमारे इसके मैटर. ओके, फिर पहला नेचर क्या है उसका? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. जो मैटर है वो किससे मिलके बनता है? टाइनी पार्टिकल्स. और उस टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग नाम दे देते हैं एटम, जो कि हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे. ओके, पहला क्या है हमारा? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. ओके, मतलब जो मैटर है वो किससे मिलके बनता है? टाइनी पार्टिकल से मिलके बनता है. किससे? टाइनी पार्टिकल्स. ठीक है, उसका नेम क्या है? एटम. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी टाइनी पार्टिकल्स तो है बट ये कितने स्मॉलर होंगे? सेकंड थिंग, कि टाइनी पार्टिकल्स तो आपने सर बोल दिया कि सर ये एटम से मिलकर बनता है. एटम कितने ज्यादा छोटे होते हैं? अभी ये इतने छोटे होते हैं कि इसको हम लोग बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करना पड़ता है. एटम की साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर, सॉरी -15 मीटर. ये एक एटम की साइज है और उसके न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी उससे भी छोटा. ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. दे आर स्मॉल beyond our imagination. मतलब ये हमारे इमेजिनेशन से भी परे है कि भाई कितने ही छोटे होंगे. बताया अभी मैं, जैसे कि एटम की जो साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर है, यानी बहुत छोटा, बहुत दिखाई तक नहीं देगा. उसके लिए हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप चाहिए रहता है और इसके न्यूक्लियस को देखने के लिए भी हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज है 10⁻⁻15 मीटर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. मैटर के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है?
ऑफ मैटर। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यानी जो मेटल्स की जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली ऐसे 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 मूव करते रहते हैं। ओके, किसी भी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। सेकंड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। मतलब ये एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपनी तरफ खींचेंगे। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। फिर नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। व्हाट? पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर है उनके बीच में क्या है, स्पेस भी होती है। लेकिन वो भले एक दूसरे से इंटरेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन छोटी थोड़ी सी भी क्या होती है, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है। फिर क्या है? ओके, so these three are the characteristics of matter. First, particles of matter are continuously moving, यानी कि वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मेटल्स। और थर्ड क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन, मतलब अट्रैक्ट करेंगे बट उनके बीच में क्या रहेगी, ऐसे स्पेस रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, states of matter. So there are four states of matter. मैं अभी फोर बता रहा हूँ, बट आपको अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ ले कि वही हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, यू विल राइट ओनली थ्री। ठीक है, क्योंकि जो फोर्थ वन है वो हमारे रेडियो सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, वो हमारे क्या है, नेक्स्ट मतलब लास्ट में है, इस चैप्टर का जो एंडिंग है वहां पे है फोर्थ वाला, और मे बी वो वाला कि में नहीं है रेडियो सिलेबस में। तो मैं 44 स्टेट बता दे रहा हूँ। पहला, सॉलिड। सेकंड, लिक्विड। थर्ड, गैस। एंड फोर्थ इज प्लाज्मा। ओके, तो ये हमारे किसके स्टेट्स ऑफ मैटर है। पहला क्या है, लिक्विड है। सेकंड, सॉरी, फर्स्ट सॉलिड, देन लिक्विड, ये सॉलिड, लिक्विड, एंड नेक्स्ट गैस। ओके, तो दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, और हम लोग अभी इसमें से ये थ्री कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट होता क्या है? इसमें पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड स्टेट की कि
डेफिनेट शेप शेप एंड वॉल्यूम। मतलब इसका एक प्रॉपर शेप होता है और क्या होता है, वॉल्यूम होता है। जैसे इसका एक प्रॉपर शेप भी है और इसका कुछ ना कुछ एक वॉल्यूम है। ओके, तो इट हैज प्रॉपर शेप एंड डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सेकेंड, बी पॉइंट, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे कंप्रेस, ऐसे हाथों से दबा नहीं सकते, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल है। नंबर, देयर इज लिटिल स्पेस, there is little space between the particles of a solid। मतलब कि जो सॉलिड है उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस रहता है। तो थर्ड पॉइंट क्या था कि देयर आर लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। मतलब जो सॉलिड है उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस रहता है। इसलिए जैसे ये है, ठीक है, अब मैं इसको अगर ऐसे नीचे रख, ऐसे नीचे फैलाऊंगा भी ना, जैसे वाटर है, तो वाटर क्या होगा, पूरी तरह फ्लो हो जाएगा, एक जगह पे स्टडी नहीं रहेगा, ऐसे पूरी तरह फ्लो होगा। बट ये आगे तक जाएगा बट वहीं पे रुका रहेगा, मतलब फ्लो नहीं होगा पूरी तरह। ठीक है, तो नेक्स्ट है पॉइंट, these particle each other very strongly। मतलब कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं एकदम टाइटली, ताकि ये जल्दी ब्रेक ना हो जाए, ब्रोक ना हो जाए, टूट ना जाए। ठीक है, ई पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली। मतलब कि जो पार्टिकल्स है सॉलिड के वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अगर ये फ्रीली मूव करने लगा, जैसे वाटर की, वाटर नहीं बताया अभी, फ्लो कर दे, फ्लो कराओ तो वो आराम से फ्लो होगा पूरी तरह एट द एंड। लेकिन ये नहीं है कि मतलब अगर इसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर दे तो ये भी फ्लो हो जाता। बट इसके पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे के बीच में मतलब कैसे रखते हैं, एकदम अट्रैक्ट है वेरी स्ट्रांगली, और उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस है जिसके से वो एकदम एकदम पूरी तरह से चिपके हैं मान लो, तो जिससे कि वो फ्लो होंगे ही नहीं। ओके, ये थी characteristics of solids। These are the characteristics of solids। Next, second, liquid state। अब क्या है हमारा लिक्विड स्टेट। तो अगर मैं लिक्विड स्टेट की बात करूं तो देखो उसके पास डेफिनेट शेप नहीं बट उसका डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। चाहे जहां पे रखो आप, कोई भी कंटेनर में रखो, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स्ड मिलेगा आपको। बट उसका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है, यानी वो फिक्स्ड नहीं रहता है। वो क्या करता है, जिस कंटेनर में आप लोग रखते हो उस कंटेनर का शेप वो ले लेता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये, तो चलिए नोट डाउन करिए।
नो डेफिनेट शेप, क्या लिख सकते इसका नंबर है, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, लिक्विड हैव definite volume but not definite shape. It takes the shape of container in which it is kept. यानी कि जिस कंटेनर में उसको रखा है वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। जैसे भी ये वाटर जो है इस बॉटल में रखा है तो इस बॉटल का जो भी शेप होगा वो ये लिक्विड क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, बट इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। सेकेंड बी नंबर, compressible to a small extent, compressible to a small extent, इन एक स्मॉल एक्सटेंट तक कंप्रेसिबल है। ठीक है, अभी ऐसे मान लो ये तो ठीक है थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, बट अब जो नॉर्मल रेलवे स्टेशन पे हमको वाटर बॉटल मिलता है ना, उसको आप एकदम हाफ रखो, ठीक है, इतना हाफ कर दो उसका वाटर, अब फिर उसको कंप्रेस करो ऊपर से ये क्या हटा के, ठीक है, ताकि एयर ट्रैप ना रहे उधर, और कंप्रेस करो, कंप्रेस होगा जितना वाटर है उसके लेवल तक तो हो जाएगा, बट हाँ वाटर भी कुछ लिमिट तक ही कंप्रेस कर पाएगा अपने आप को, उसके बाद नहीं कर सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो कंप्रेसेबल है बट कुछ एक्सटेंड तक, स्मॉल एक्सटेंड। फिर इसके में क्या है, these particles have greater space between them. These particles have greater space between them. यानी कि इन ये जो लिक्विड के जो भी पार्टिकल्स है उनके बीच में थोड़ी स्पेस ज्यादा रहेगी, तभी हम लोग अगर वाटर में अपना हैंड ऐसे करेंगे तो हाँ वो हैंड वाटर के अंदर तक जा सकता है। ठीक है, ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है हमारा। अब मैं अगर इसको बाहर निकालूं या फिर ऐसे में ऊपर से कट कर दूं, अगर मैं ऐसे हैंड डालूंगा ना तो भी मेरा हैंड अंदर तक जाएगा, बट जो हमारा जो सॉलिड है ये सॉलिड है। अब मैं इसमें अगर ऐसे फिंगर भी रखना चाहूँ ना, मतलब फिंगर अपना ऐसे इमर्ज करना चाहूँ, नहीं होगा फिंगर, ठीक है, क्योंकि इसके में स्पेस ही नहीं है इसके पार्टिकल्स के बीच में। ओके, और इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, थोड़ी स्पेस है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा भी स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस तो है ही नहीं इसमें भी, कुछ स्पेस है इसलिए हम लोग जा पाते हैं अंदर। ठीक है, द फोर्स ऑफ attraction between liquid particles is less than solid particles। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड पार्टिकल में वो सॉलिड पार्टिकल से कम है, यानी कि वो ज्यादा चिपक के नहीं रहते, थोड़ा सा ऐसे स्पेस मतलब थोड़ा सा दूर रखते, बट हाँ पकड़े रहते। ठीक है, गले नहीं मिल रहे, गले मिल रहे तो बिल्कुल स्पेस नहीं है, सिर्फ हैंड ऐसे पकड़ के रखे हैं तो ये क्या है, स्पेस है। वो नहीं, बच्चे लोग थोड़े मैसे ऐसे खेलते हैं तो इतना स्पेस रखते हैं ना अपने बीच में, ठीक है, तो वैसे ये स्पेस है जिसकी वजह से क्या है,
थोड़ा कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लास्ट की पॉइंट, दीज पार्टिकल्स मूव फ्रीली, मतलब इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो देखो अभी ये जो ऐसे लिक्विड है, अभी मैं इसको वैसे ग्राउंड पे ऐसे डाल दूं, ठीक है, तो क्या होगी, फ्लो आराम से हो जाएगा। ओके, ठीक है, होगा आराम से मूव करेगा क्योंकि ये सॉलिड नहीं है। ठीक, सॉलिड नहीं। नेक्स्ट, गैस। थर्ड इज गैसियस स्टेट, गैसेस, गैसेस, गैस, ये वाला, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, मतलब इसका कुछ भी डेफिनेट ना ही शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, अभी बी, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल है, जैसे बलून है, ठीक है, इतना सा बलून उसको ऐसे दबाओ तो क्या होगा, एट द एंड जो बलून की जो भी मतलब ऐसे वाले पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है balloon का मान लो ऐसा, हाँ ये भी मान लो बलून है, ठीक है, ये अपर पोर्शन, ये लोअर पोर्शन, अगर प्रेस भी करोगे ना आप तो पूरी तरह क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हाईली कंप्रेसिबल है। ठीक है, 3 पॉइंट, द स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल इज द ग्रेटेस्ट, मतलब कि जो गैस पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी अगर एक इस कोने में है तो एक उस कोने में है, ठीक है, तो बहुत दूर दूर होता है, और इसके बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। डी नंबर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is leads between gaseous particles, यानी कि गैसेस पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है ना, जो वंडरवॉल फोर्स है वो यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, बहुत ही निग्लिजिबल, उसको कोई भी ब्रेक कर सकता है। जैसे मान लो आप यहाँ पे एक रोप लेके पकड़े हो, वहां पे एक रोप लेके पकड़ो और एक बंदा दौड़ के आ रहा है, आप भले चाहे जितना टाइट पकड़ लो, लेकिन क्या होगा, एट द एंड वो रोप को तो ऐसे आगे तक के ले ही जाएगा ना, है ना, तो वो क्या एकदम ऐसा ही रोप के जैसे, मतलब एकदम वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, वन ओवर फोर्स, इसलिए इन दोनों की जो गैस के पार्टिकल है ना उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, मतलब एकदम इतनी दूर दूर है ना, इसलिए ज्यादा खींच भी नहीं पाते अपनी तरफ। पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव रैंडमली, मतलब जो गैस के पार्टिकल है वो कैसे मूव करते हैं, रैंडमली कहीं पे भी, ऐसे ऐसे ऐसे, इसलिए हम देखो अगर इसमें ऐसे ऐसे ये पूरी तरह अगर हम लोग ऐसे अपना हैंड भी घुमा रहे हैं ना, क्या हो रहा है, हम लोग एकदम फ्रीली मूव कर पा रहे हैं अपने हैंड को हर जगह। ओके, ये है हमारे गैस के क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे गैस पार्टिकल के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, तो यहाँ पे अभी हम लोग ने कितने टॉपिक्स कवर किए, 3 टॉपिक्स। फर्स्ट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मतलब मैटर किससे बनता है, ठीक है। सेकंड क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो देखा। थर्ड क्या था हमारा, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं वो हमने देखा।
अब फोर्थ टॉपिक है कि प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी किस किस प्रोसेस से हम लोग मैटर की जो मैटर है उसको चेंज कर सकते हैं। प्रोसेस टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स को चेंज करने की क्या क्या प्रोसेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है, कौन सी स्टेट से चेंज होता है, लिक्विड टू गैस। ठीक है, वेपर्स बनना, जब हम लोग लिक्विड को बॉइल करते हैं ना तो वेपर्स बनते हैं ना, तो वो वेपराइजेशन। सेकेंड, कंडेंसेशन, और ये किस में होता है, कंडेंसेशन होता है गैस टू लिक्विड, ये ऑपोजिट है वो दोनों का। इस वेपराइजेशन का ऑपोजिट क्या है, कंडेंसेशन। ठीक है, थर्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग है, अब पता ही आपको, फ्रीज करना, जमाना, तो लिक्विड टू सॉलिड, ये फ्रीजिंग होता है। फोर्थ, मेल्टिंग। मेल्टिंग इसका फ्रीजिंग का अपोजिट, यानी सॉलिड टू लिक्विड, मेल्ट कर देना किसी भी चीज को, जैसे आइस। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन में क्या है, वो लिक्विड टू गैस है ना। लेकिन इसमें बताऊंगा और इसमें डिफरेंस क्या होता है बताता हूँ तुमको। लिक्विड टू गैस। सिक्स्थ है अपना सब्लिमेशन। क्या है अपना, सब्लिमेशन। एंड सब्लिमेशन में क्या होता है हमारा, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस, ये अपना क्या है, सब्लिमेशन। व्हाट, सब्लिमेशन। फिर आता है डिपोजिशन, सेवन। सेवन, डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है, गैस टू सॉलिड। ठीक है, डिपोजिशन में हम लोग गैस स्टेट को सॉलिड स्टेट में करते हैं, सब्लिमेशन में सॉलिड स्टेट को गैस स्टेट में करते हैं। इवेपोरेशन में लिक्विड को गैस में करते हैं, मेल्टिंग में सॉलिड को लिक्विड में करते हैं, फ्रीजिंग में लिक्विड को सॉलिड में करते हैं, कंडेंसेशन में गैस टू लिक्विड में करते हैं, और वेपराइजेशन में लिक्विड टू गैस। ठीक है, अभी नोट पॉइंट ये है, वेपोराइजेशन इज अ बल्क phenomenon,
Second, evaporation is a surface phenomenon. ओके, मतलब कि जो वेपराइजेशन है वो हमारा क्या है, बल्क फिनोमिना, और जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना। वेपराइजेशन में क्या होता है, जो कि हम वाटर को अगर बॉईल करते हैं ना, पूरा वाटर ही हमारा किसमें चेंज होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है। ठीक है, वेपराइजेशन वो होता है क्योंकि पूरी तरह अंदर से बॉईल हो रहा है, ये पूरा लिक्विड बॉईल हो रहा है। और इवेपोरेशन क्या, अभी मैं इसको बाहर धूप में ले आके बस रख दूं तो सरफेस से जो वाटर हटता है उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना। और वेपराइजेशन क्या है, बल्क फिनोमिना, क्योंकि इसमें वेपर्स बनते हैं। वेपर्स कब बनते हैं, जब हम किसी भी चीज को बॉईल करते हैं। ठीक है, जिसे बॉइलिंग बोला जाता है। ओके, अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपोराइजेशन, सॉरी, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अभी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, so factors affecting evaporation. So first factor is temperature. तो टेम्परेचर में क्या है, अगर टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मेरा इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवेपोरेशन होता है। जैसे समर के टाइम पे जितना ज्यादा सन का मतलब सन जो रहता है, जितना ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है उतना ज्यादा इवेपोरेशन होता है। ठीक है, सेकेंड, प्रेशर। अगर प्रेशर डिक्रीज है तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, अगर लेकिन प्रेशर इंक्रीज है तो इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। यानी कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो इवेपोरेशन नहीं होता है, इवेपोरेशन बहुत कम होगा। जैसे कि अभी लिक्विड के अंदर जाते जाते वहां पे प्रेशर ज्यादा रहता है, इसलिए वहां पे इवेपोरेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर प्रेशर कम है, जैसे सरफेस पे, वाटर के एकदम सरफेस पे, वहां पे प्रेशर क्या है, कम है, कम है, इसलिए इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर प्रेशर ज्यादा तो इवेपोरेशन कम। थर्ड, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इवेपोरेशन भी हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब कि अभी मैं ये वाटर को ले लूं, ठीक है, बॉटल पूरा ऊपर तक मैंने फुल कर दिया है। अब मैं इसको धूप में रख दिया और एक प्लेट मैंने रख दी, तो इसमें सरफेस एरिया क्या है, कम है, और इसमें क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से जो इवेपोरेशन होगा वो बहुत कम होगा, यहाँ से क्या होगा, जो प्लेट रहेगी मेरे पास उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी इन एयर। थर्ड वन, फोर्थ वन, फोर्थ वन, ह्यूमिडिटी इन एयर। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज है तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, फिर है फोर्थ, फिफ्थ, विंड स्पीड। विंड स्पीड, विंड स्पीड ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। अगर ये कम है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम। जैसे टेम्परेचर अगर कम है मेरा तो इवेपोरेशन मेरा कम होगा। सरफेस एरिया कम है मेरा तो इवेपोरेशन ऑल्सो भी लेस। ओके, so that's all for today. Now we will continue the chapter in our next video. So thank you for watching. Please subscribe the channel and share more and more students.
थैंक यू, बाय, जय हिंद।